students, we are going to cover everything from beginner till the advanced level from scratch in this lecture series. This is lecture 1, module management foundations. In this lecture, we are going to learn introduction to management, where in upcoming lectures, we are going to cover each of these theories and important concepts. Apart from this, we will take another 23 more lectures to complete this unit 1. So let's start. After this lecture, you will be able to learn and define management using 6 definitions, describe its scope, importance, characteristics, different types of levels and functions of management. You will be able to compare management as a science, art, and profession, and explain the true meaning and universal nature of management. And you will be able to apply these real concepts with the real companies like Apple, Tata, Amul, and more. So let's start with the lecture. I hope you are having a good day. What is management? Management is a continuous process. It's not a part of anything. It works everywhere. It is a process which starts from planning something to organizing, leading, controlling resources to achieve organizational goals. It is a universal activity which present in every organization, whether it's big or small. It works through and with people to get things done. इसको आप ऐसे समझिए कि मैनेजमेंट एक ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है. मैनेजमेंट 5 M's जो होते हैं मैनेजमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. हम लोगों को क्या क्या मैनेज करना होता है? मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड ऑन विच वी आर वर्किंग. फॉर एग्जाम्पल, ए रेस्टोरेंट मैनेजर कोऑर्डिनेट्स शेफ्स, वेटर्स, बजट, इक्विपमेंट डेली. तो दैट इज मैनेजमेंट इन एक्शन. So most important things which you need to learn is what is efficiency and what is effectiveness. Efficiency means doing things right, minimum resources and cost. हम बोलेंगे मैं बहुत एफिशिएंट मैनेजर हूं, तो आप एफिशिएंट कब होंगे? जब आप सही चीजें कर रहे हैं विथ मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. और आप अगर इफेक्टिव मैनेजर है तो इट मीन्स आप सही चीजें कर रहे हैं, मीन्स यू आर अचीविंग द राइट गोल्स ऑन टाइम. Effectiveness means focus on the time majorly and achieving goals. It focus on achieving the things but with minimum resources. It focus on time, it focus on resources. When both combine, it means my manager is an efficient as well as effectiveness. So a person should be effective as well as efficient, both. So this is the management, managing things efficiently and effectively. Okay. So how does different masters define management? We have 6 definitions. First, Peter Drucker explained management is the organ of an institute. It manages the business, manages managers, and manage workers and their work. So in simple definition, we can say focus on management as an organ that drives institutional performance. Peter Drucker ने जो दी थी, he is the father of modern management. ठीक है. और हैरोल्ड कुंट्ज जो है वो मैनेजमेंट थ्योरी जंगल पे बेस्ड है इनकी. ठीक है. Management is the art of getting things done through and with people working in formally organized group. तो इनका कहने का मतलब ये था, focus on management as an art exercised through people in groups. ठीक है. थोड़ा डिफरेंशिएशन समझना, इनमें कभी मैच द कॉलम आ सकता है और प्रोबेबली आपको डेफिनेशन लिखोगे तो मार्क्स अच्छे आते हैं. ठीक है. हेनरी फ्योल ने क्या दी थी? ही इज फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट. To manage is to forecast and plan, to organize, to command and to coordinate and to control. तो इनका कहने का मतलब है मैनेज का मतलब होता है फोरकास्ट करना, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना. सो दीज आर द थिंग्स गिवन बाय हेनरी फ्योल. एंड मैरी पार्कर फॉलेट जो थे वो मदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थे. शी इज एन फीमेल. ओके. मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, एम्फेसाइजिंग ह्यूमन रिलेशन एंड कॉर्पोरेशन. ठीक है. मेजरली इनका फोकस था ह्यूमन एंड बिहेवियर साइड पे. ठीक है. सोशल प्रोसेस है, नॉट जस्ट टेक्निकल. और ये चीज याद रखना, ये जो हम पढ़ते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग और ये सब जो 5 बेसिस थे, 5 फंक्शन थे मैनेजमेंट के, वो हेनरी फ्योल ने दिए थे. जॉर्ज आर टेरी है, इनकी डेफिनेशन थी प्रोसेस ओरिएंटेड व्यू पे. ठीक है. मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस जहां पे हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश ऑब्जेक्टिव. स्टीफन पी रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दी थी कंटेम्परेरी मैनेजमेंट पे, management is the process of coordinating work activities and so they are completed efficiently and effectively through other people. इनका मेन फोकस था कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क एक्टिविटीज पे. ठीक है. इन्होंने एक्चुएटिंग इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग एंड कमांडिंग पे फोकस किया था और इन्होंने एक POAC डिफरेंट मॉडल दिया था. और जो रॉबिन्स थे, इन्होंने बोला था मैनेजमेंट को एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के साथ लिंक करना चाहिए. ठीक है. इनकी डेफिनेशन
MBA टेक्स्ट में सबसे ज्यादा कोटेड रहती है। नाउ कॉमन थ्रेड्स क्या रहते हैं अक्रॉस ऑल डेफिनेशंस? पीपल ओरिएंटेड सारी थी एक्सेप्ट दिस फ्योल्स। हेनरी फ्योल का मेन फंक्शनल एलिमेंट्स पे फोकस था, ठीक है। गोल ओरिएंटेड भी सारी थी, बट ये वाली ह्यूमन पे ज्यादा फोकस थी, जो मैम ने दी थी मैरी पार्कर फॉलेट ने, वो इस पे कम थी। और एफिशिएंसी पे मेजरली जो फोकस किया गया था वो इन 3 डेफिनेशंस में किया गया था, ठीक है। तो कंक्लूजन यही निकलता है, नियर ऑल डेफिनेशंस एग्री, मैनेजमेंट इज अबाउट अचीविंग गोल्स थ्रू पीपल विथ ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो इनका वन लाइन में अगर डेफिनेशन समझते हैं, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस, यूनिवर्सल, गोल ओरिएंटेड process of planning, organizing, staffing, directing and controlling human and non-human resources to achieve organizational objective efficiently and effectively, ठीक है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसमें हमारे पास आ गए हैं। कंटिन्यूअस मतलब होता है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो नेवर एंडिंग है, हर वक्त हमें इसको कंटिन्यूअसली मैनेज करता रहना पड़ेगा एट एवरी पॉइंट ऑफ स्केल वेयर एवर यू आर राइट नाउ, ठीक है। ये अप्लाइज टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड साइजेस। अगर आपकी छोटी दुकान है तो वहां भी मैनेजमेंट जरूरत है, अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग है, MNC है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो भी आपको मैनेजमेंट करना जरूरी है। गोल ओरिएंटेड होता है, आप मैनेज करना क्या चाह रहे हैं, आपका आउटकम क्या है, तो दीज ऑल थिंग्स नीड टू बी देयर व्हाइल मैनेजिंग समथिंग। रिसोर्स इंटीग्रेटिंग होता है, मतलब कि ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करके कोई चीजों को मैनेज करने पे बात की जाती है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, वही सेम स्टार्ट हो रहा है। गोल ओरिएंटेड होना जरूरी है, जैसे कि Amazon's गोल ऑफ फास्टेस्ट डिलीवरी। अब आपका गोल क्या है कि हमें सबसे फास्ट डिलीवरी पहुंचानी है टू द कस्टमर, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, अपने मैनेजमेंट करेंगे, एक्शंस लाएंगे, एम्स, गोल्स, अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब यूनिवर्सल प्रोसेस है, मतलब कि बिजनेस हो, चाहे हॉस्पिटल हो, NGO, गवर्नमेंट हो, स्पोर्ट्स टीम हो, ठीक है, एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट जरूरी है, ठीक है। इट इज एन प्रोसेस विच नीड्स टू बी इन एवरीवेयर। कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, ऐसा नहीं है कि हमने प्लानिंग कर ली अब मैनेजमेंट करना बंद कर देंगे। नो, यू हैव टू कंटिन्यूअसली मैनेज द थिंग्स फ्रॉम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग टिल कंट्रोलिंग एंड देन इन द लूप। So this is the memory trip which you can also learn, like goal oriented, universal and continuous, ठीक है। Now the fourth characteristic is multi-dimensional, involves management of work, people and operations simultaneously। multi-dimensional ये होता है कि सिर्फ एक चीज को मैनेज नहीं करना होता, you have to manage a lot of dimensions of your organization। इंसान हो, पीपल हो, काम हो, ऑपरेशंस, जो अलग अलग ऑपरेशंस के डिपार्टमेंट में जो चीजें हो रही है उन सबको मैनेज करना होता है। तो दिस इज अ मेजर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी को इंडिविजुअल इंसान सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता है, सबके साथ मिलके शेयर्ड गोल बना के ही मैनेज करना होता है। एंड डायनेमिक एंड टेंजिबल होता है, मैनेजमेंट हम देख नहीं सकते, ठीक है, बट इसकी प्रेजेंस हमें इसके रिजल्ट्स के थ्रू फील की जा सकती है। इट कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली, ओके। सो दीज ऑल आर 6 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। मैनेजमेंट इज बेस्ट अंडरस्टूड एज एन इन एग्जैक्ट साइंस एंड आर्ट प्रैक्टिस्ड विद ग्रूमिंग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। देखो इसको कैसे समझते हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट तीनों में से क्या है? आई वुड से इट इज अ पार्ट ऑफ ऑल थ्री, ठीक है। एवरी वी नीड सम थिंग्स फ्रॉम साइंस। साइंस क्या बोलता है कि मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक, साइंस क्या होता है, मैनेजमेंट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं वो, ठीक है। साइंस ये बात करती है, और आर्ट बोलती है पर्सनल स्किल, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे बात करती है। नो टू मैनेजर्स मैनेज आइडेंटिकली। ये बोलते हैं कि अगर एक मैनेजर एक तरीके से किसी चीज को मैनेज कर रहा है तो पॉसिबल, बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि सेम मैनेजर अदर मैनेजर सेम स्टाइल में मैनेज करे, बिकॉज डिफरेंट मैनेजर्स हैव देयर डिफरेंट आर्ट, डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट क्रिएटिविटी। तो ये बोलते हैं कि आर्ट्स जितने स्ट्रांग होंगे वो उतना अच्छा मैनेज करेगा। प्रोफेशन में क्या बोलते हैं कि फॉर बीइंग अ मैनेजर you need to have some degree, some formal education, some ethical code of conduct, some knowledge, ठीक है। जरूरी नहीं है आप लाइसेंसिंग होंगे तो ही अच्छा मैनेज कर पाएंगे, बट ये बोल रहे हैं कि देयर नीड टू बी सम एथिकल कोड्स एंड एजुकेशन टू मैनेज समथिंग। और साइंस में ये बोलते हैं कुछ रूल्स होते हैं जो एग्जैक्ट फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, कुछ का हमें कॉज एंड इफेक्ट पता होता है। तो हम इनको समझते हैं कि क्या क्या चीज हमारे मैनेजमेंट में डिटेल्ड कंपेरिजन में आ सकती है। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की बात साइंस करता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बात ये करता है। प्रोफेशन में भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। अगर आप पर्टिकुलर एग्जाम पास करेंगे तो ही आपको MBA की डिग्री मिलेगी, ठीक है, तो ही BBA की डिग्री मिलेगी, तो ही आप JRF क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के बेस्ड होते हैं। तो ये साइंस बात करता है इन तीनों चीजों की। और जो आर्ट बोलते हैं वो बोलते हैं कि पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस करते करते ही आप अच्छा मैनेजर बन सकते हैं।
आर्ट, ये वाली चीजें बोलता है। प्रोफेशन बोलता है कि आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू भी सीखते हैं, प्लस फॉर्मल एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन के थ्रू भी सीखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको बेस से पता होनी चाहिए। नाउ इसका स्कोप क्या होता है, हम मैनेजमेंट कहाँ कहाँ करते हैं। मैनेजमेंट हर फंक्शनल एरियाज में काम आता है, चाहे वो एचआर हो, ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, मार्केटिंग, स्ट्रेटेजी। तो इट नीड्स टू बी देयर इन एवरी टाइप ऑफ स्कोप। तो इंपॉर्टेंस क्या है, देखो देखो इंडिविजुअल क्या करेगा, अपने आप को मैनेज करेगा। इफ समवन इज मैनेजिंग गुड, तो इट मीन्स इट हैज अ बेटर करियर ग्रोथ, पर्सनल प्रोडक्टिविटी एंड गोल क्लैरिटी। इफ यू आर ए गुड इनटू मैनेजमेंट, यू विल हैव अ गुड क्लैरिटी। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो वो ऑप्टिमम रिसोर्स का यूज करेंगे और हाई प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करेंगे इफ यू आर गुड इनटू मैनेजिंग थिंग्स। अब अगर सोसाइटी की बात करूं तो आप अगर अच्छे मैनेजर है तो यू कुड बी एबल टू क्रिएट द जॉब, क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज देंगे, लिविंग स्टैंडर्ड्स आपके अच्छे रहेंगे। नेशन की बात करूं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जीडीपी, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस होगी। ग्लोबल बिजनेस में क्या होता है, एमएनसीज और के थ्रू आप एफिशिएंटली अपने आप को इंटरनेशनली प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी देयर इफ यू आर अ गुड इनटू मैनेजमेंट। अब क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स होते हैं मैनेज करने के। तो जो टॉप लेवल्स होता है, थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स है, जिसको हम पिरामिड बोलते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट जो होता है उनके अंदर कौन कौन मैनेज करते हैं, सीईओ, एमडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजमेंट डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो होता क्या है, ये टॉप मैनेजमेंट के होते हैं जो क्या करते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक लेवल के होते हैं। ठीक है, तो इनमें ये सब इंक्लूड होते हैं जो आपके पूरे कंपनी का मिशन, विजन सेट करते हैं, वो होते हैं टॉप मैनेजमेंट के। और जो मिडिल लेवल होते हैं वो होते हैं डिपार्टमेंट्स के हेड। ठीक है, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड है, और एक सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स मार्केटिंग अलग अलग भी हेड हो सकते हैं, ऑपरेशंस के हेड है, एचआर के हेड है, रीजनल मैनेजर्स है, ये नॉर्थ रीजन के, साउथ रीजन के। तो दीज आर इनटू मिडिल मैनेजमेंट। तो वो क्या करते हैं, एक लिंक का रोल प्ले करते हैं बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट वो नहीं होते हैं जो नीचे काम करते हैं, वो भी एक तरीके से सुपरवाइजर्स होते हैं, टीम लीडर्स होते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो हैव देयर टीम जिनके थ्रू वो काम करवाते हैं। ठीक, तो दीज और आर इनटू अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, जो चीजों को मैनेज करने में हेल्पफुल करते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप डिसाइड्स व्हाट, क्या करना है, मिडल डिसाइड्स कैसे करना है, एंड लोअर जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि वो काम हो जाए। ठीक है, तो सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें दे रखी है। ये कंसेप्चुअल स्किल्स पे काम करते हैं, जिनके पास बहुत अच्छे कंसेप्ट क्लियर होंगे और जो बहुत एक्सपीरियंस होंगे वो इन सब चीजों में आते हैं। उनके एग्जाम्पल ये होते हैं टाइटल्स। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग, लॉन्ग टर्म विजन, गोल सेटिंग पे होता है। मिडिल वाले जो होते हैं पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन लाना, ह्यूमन प्लस कंसेप्चुअल दोनों चीज होती है इसमें। और जो लोअर होते हैं वो डायरेक्ट सुपरविजन करते हैं, डे टू डे एग्जीक्यूशन पे फोकस रहता है। अब एक हम रॉबर्ट गार्ड्स की मैनेजरल स्किल्स है जो हम लेक्चर 6 में कवर करेंगे, जो कंसेप्चुअल, ह्यूमन एंड टेक्निकल की स्किल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नाउ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट व्हाइल लर्निंग अबाउट द मैनेजमेंट। तो सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो कोऑर्डिनेटिंग नया ऐड हुआ है, अदरवाइज देयर हैड बीन 5 concepts on 5 functions only, बट कोऑर्डिनेटिंग इसलिए ऐड हुआ है क्योंकि ये पांचों फंक्शन के बीच में अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू वर्क इन द लूप। अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, इफ देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टीम, बिटवीन द टॉप लेवल, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, तो देयर शुड बी ए कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन ऑल द प्रोसेस। सो दैट्स व्हाई इसमें ये भी ऐड हुआ है। तो दीज फंक्शंस रन इन साइकिल, नॉट स्ट्रिक्टली इन स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या है, पूरे साइकिल में रन होते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग फीडबैक इनटू प्लानिंग फॉर नेक्स्ट साइकिल, फिर ये कंट्रोलिंग वापस फीडबैक मिलती है, वापस प्लानिंग पे शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ईच फंक्शन गेट्स अ डेडिकेटेड लेक्चर लेटर इन दिस यूनिट। हम इस यूनिट में एक एक फंक्शन पे एक एक लेक्चर कवर करेंगे डिटेल। ठीक है, नाउ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं, जैसे हमने अभी भी देखा। तो प्लानिंग मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, हमें क्या करना है हमारे बिजनेस में और कैसे करना है। स्टाफिंग मतलब ये होता है, सॉरी पहले ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में ये होता है जो हमने सोच लिया हमें क्या करना है, कैसे करना है, फिर हम क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेस को मैनेज करते हैं, एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जिस स्ट्रक्चर में हम हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। फिर थर्ड स्टेप आती है स्टाफिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टाफ्स मतलब जो हमारे एम्प्लॉइज है, जो हमारे हो सकता है कि सीईओ वगैरह हो गए, या फिर हमारे बिजनेस में जो भी
काम करने वाले लोग हैं उन सबको हायर करना, रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, तो वो सब स्टाफिंग का काम होता है। फिर आता है डायरेक्टिंग, कि उन जो काम कर रहे हैं उनको कौन किस लेवल पे गाइड करेगा, कौन किसको सुपरवाइज करेगा, कौन सी टीम में कितने लोग होंगे, तो ये सारी चीजें डिसाइड करना। कोऑर्डिनेटिंग में होता है सिंक्रोनाइजिंग एफर्ट्स अक्रॉस डिपार्टमेंट एंड पीपल। ठीक है, जो भी हम काम कर रहे हैं उनके बीच में पूरा बहुत अच्छा सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है। फिर कंट्रोलिंग में होता है जो हमने प्लान किया था उसको वापस चेक करना, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे वही हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये आपका पूरा सिलेबस का पार्ट रहेगा। नाउ मैनेजमेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अब अगर हम आज की बात करें तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हो रहा है, जैसे कि क्लाउड ऑटोमेशन एंड डिजिटल फर्स्ट ऑपरेशंस पे फोकस होता है, मतलब कि डिजिटली सारी चीजें मैनेज की जा रही है। और एआई असिस्टेंट डिसीजन मेकिंग और फोरकास्टिंग भी हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना सीईओ वगैरह डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन लेते हैं, वो अपना कंसेप्चुअल पावर यूज करते हैं, बट दे आर यूजिंग एआई एज वेल टू गेट द डिसीजंस का इंसाइट्स। बहुत सारे डेटा का जो छोटा इंसाइट मिलता है, जो वहां से समरी मिलती है ना, वो एआई के थ्रू वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, और आजकल मैनेजमेंट ग्लोबल होता जा रहा है, क्रॉस बॉर्डर टीम्स हो रही है, फॉरेनर्स को भी अपनी कंपनी में क्या करते हैं, हायर करते हैं टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट कंपनी को बढ़ाने के लिए। सो दीज आर द ट्रेंड्स। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना बहुत जरूरी है, कुछ भी बिजनेस की स्ट्रेटेजी हो उसको ईएसजी गोल से करना जरूरी है। ठीक है, एनवायरमेंटल से। और रिमोट वर्क का भी अभी ट्रेंड चल रहा है कि हाउ यू विल मैनेज वाइल समवन इज वर्किंग रिमोटली। तो हाइब्रिड वर्क हो गया, एनवायरमेंट होम वर्क फ्रॉम होम एनवायरमेंट हो गया, तो उनका भी मैनेजमेंट चल रहा है। अभी इंडस्ट्री 5.0 का भी रोल चल रहा है, जो ह्यूमन सेंट्रिक है, सिर्फ काम पे फोकस नहीं करवा रहे, वो आपकी 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 हेल्थ, आपकी फैमिली, आपका कंफर्ट, ठीक है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, वो सब भी चेक करते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये सब चीजें अभी फोकस में चल रही है। अब अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स के साथ, रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें, जैसे एप्पल है, प्रोडक्ट फोकस्ड ऑर्गेनाइजिंग अराउंड डिजाइन एंड इनोवेशन। तो इनका मेन मैनेजमेंट का इनका मेन मुद्दा क्या होता है, दे आर फोकसिंग ऑन डिजाइन एंड इनोवेशन। वो जो भी नया प्रोडक्ट लेके आएंगे उनका मेन फोकस होता है कुछ न्यू डिजाइन, कुछ ऐसा इनोवेशन। इनका मेन फोकस है प्रोडक्ट को डेवलप, कुछ ऐसा यूनिक डेवलप करना। अब अगर अमेजोन की बात करें, इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड कस्टमर सेंट्रिक कंट्रोलिंग पे इनका फोकस है। कहने का मतलब जो इनका पूरा ऑपरेशन है, स्टार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट, फ्रॉम देयर वेयर हाउस बोल सकते हैं, या फिर फ्रॉम द जिससे वो ले रहे हैं सप्लायर से लेके कस्टमर तक पहुंचाने में पूरी लेवल में एफिशिएंसी, कम से कम कॉस्ट लेके आना। हमने पढ़ा ना, एफिशिएंसी मतलब मिनिमल कॉस्ट पे फोकस करना। और जैसे टाटा ग्रुप है, वो मैनेज कर रहे हैं बाय वैल्यू बेस्ड एथिक्स ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। उनके कल्चर इतना अच्छा है कि जहां पे एथिक्स को फॉलो किया जाता है, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना। मैं ये नहीं बोल रही बाकी सब कंपनीज करती है, बट दिस इज देयर मेन विजन। ठीक है, अमूल है, उनका होता है कोऑपरेटिव मॉडल है, वो अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना इनका मेन मैनेजमेंट का प्रोसेस रहता है। जो जैसे टेस्ला है, विजनरी टॉप मैनेजमेंट ड्राइविंग डिस्ट्रप्टिव प्लानिंग। जैसे कहीं भी इन लोगों का जो मेन रहता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है हमारे उनके ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ कैसे न्यू तरह की प्लानिंग करना, कुछ ऐसा नया चेंज लेके आना। डिसरप्टिव मतलब होता है कुछ ऐसा नया जो अभी तक किसी ने ना किया हो, समथिंग दैट विल चेंज द वर्ल्ड व्हाइल ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट, इनोवेशन। ठीक है, जैसे इन्फोसिस है, वो स्ट्रक्चर्ड स्टाफिंग एंड टैलेंट डेवलपमेंट सिस्टम पे ज्यादा फोकस रखता है। ठीक है, तो अगर एमबीए पर्सपेक्टिव से हम देखें, मैनेजमेंट का यूज आप बहुत सारे केस स्टडीज के थ्रू पढ़ेंगे, हम इंटर्नशिप्स, लाइव प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम सीखेंगे। और फाउंडेशंस फॉर एवरी कोर एमबीए सब्जेक्ट जो है वो ओबी, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्ट्रेटेजी और ये सब पे होता है। जो रिक्रूटर्स होते हैं वो क्या देखते हैं कि आप कितने, कोई भी कैंडिडेट है वो प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, इन सब में उनकी क्या एबिलिटी रहती है, कितने वो कॉर्पोरेटली रेलेवेंट है। एवरी प्रमोशन के टाइम उनकी मैनेजरियल स्किल्स देखी जाती है। अब अगर यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो उनके लिए टॉप कॉमन क्वेश्चंस जो आते हैं, ये आते हैं रिलेटेड टू पीटर ड्रकर, इन सबकी डेफिनेशन, साइंस वर्सेस आर्ट्स प्रोफेशन में डिबेटेबल क्वेश्चंस आते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और स्किल्स की मैपिंग वाला आता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है related to UGC net management. So these are the common mistakes which everyone should avoid. Now, अगर रिसर्च पर्सपेक्टिव से देखूं, समवन इज डूइंग रिसर्च इन मैनेजमेंट और एमर्जिंग ट्रेंड्स पे, तो एआई ऑग्यूमेंटेड रिसर्च पे बहुत अच्छी रिसर्च चल रही है। ठीक है, फोकस ऑन सस्टेनेबल एथिकल प्रैक्टिसेस पे ज्यादा है, फास्ट ग्रोइंग रिसर्च हो रहा है ग्लोबलाइजेशन का, क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट पे। ठीक है, इन सब चीजों पे क्या हो रहा है, पर्सपेक्टिव थ्योरी को रिप्लेस करते हुए वो बिहेवियरल एंड डाटा ड्रिवन पे ज्यादा फोकस हो रहा है। So this is your today's activity. Just pause and reflect what you can do.
think one of organization you interact with daily, either your college, your gym or your shop, anywhere. Which management function is most visible there? अब वहां पे कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन सबसे ज्यादा देखते हैं? प्लानिंग वाला, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कौन सी चीजें आप वहां देखते हैं? कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, ये आप इसमें डिस्कस कीजिए एंड देन यू कैन शेयर योर एक्टिविटी लर्निंग इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। ठीक है, आप पेयर करके भी इसमें आप इसमें सोच सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर बेसिक थिंग्स विच यू हैव लर्न्ड टुडे। डिफाइंड मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। तो वो डेफिनेशन दी थी हैरोल्ड कुंज ने। विच कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स मैनेजमेंट अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब होता है यूनिवर्सल, ऑल टाइप ऑफ, कितनी भी तरह की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हो सब में मैनेजमेंट जरूरी है, तो वो बोलती है यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक। और जॉर्ज टेरीज प्रोसेस मॉडल जो था वो किस एक्रोनिम पे था? वो POAC। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इस पे फोकस था। एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट प्राइमरली रेफर्स टू, एफिशिएंसी मतलब होता है डूइंग थिंग्स विद मिनिमम रिसोर्सेज, मतलब मिनिमल कॉस्ट पे फोकस्ड रहता है एफिशिएंसी का। और इफेक्टिवनेस का रहता है मिनिमल टाइम पे गोल्स अचीव करना। मिनिमल टाइम और बोल सकते हैं जिस गोल पे सेट किया है टाइम, जो टाइम पे हमने गोल सेट किया उस टाइम पे अचीव करना, टाइमली। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज मोस्ट एसोसिएटेड विद डे टू डे सुपरविजन? तो वो होती है लोअर लेवल। ठीक है, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड ए प्रोफेशन इन द मेकिंग बिकॉज इट लेक्स मैंडेटरी लाइसेंसिंग एंट्री बैरियर। ठीक है, प्रोफेशनल में क्या होता है, आपको एंट्री बैरियर्स होते हैं। एनीवन कैन बी डू MBA, बिकॉज उसमें आप कब कर पाओगे? जब आपके पास में उसका एक MBA की डिग्री होगी, देन यू विल बी नोन एज MBA। अगर किसी को PhD करनी है, PhD होने के बाद वो उसके आगे नाम के आगे डॉक्टर लगता है, डॉक्टर इन मैनेजमेंट व्हाटएवर, तो वो विदाउट डिग्री, विदाउट लाइसेंस नहीं हो सकता है। तो कुछ थिंग्स प्रोफेशनली होती है, वो चीज की बात की जा रही है यहाँ पे। विच इज नॉट वन ऑफ द 5 M's ऑफ मैनेजमेंट। हमने पढ़े थे 5 M's, मैन, मनी, मशीन, मोटिव नहीं था। ठीक है, मैरी पार्कर फॉलेट जो थे वो मैम थे, इज बेस्ट नोन फॉर एम्फेसाइजिंग ह्यूमन रिलेशन। डूइंग द राइट थिंग्स बेस्ट डिस्क्राइब्स इफेक्टिवनेस। ठीक है, ये राइट थिंग्स की बात कर रहे हैं ना, वो इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं, और टाइमली गोल्स को अचीव करना भी इफेक्टिवनेस होता है। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग एक्चुअल विसेज स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस? वो होता है कंट्रोलिंग। हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस था उसको स्टैंडर्ड के साथ सेट करना। जो एक्चुअल मतलब जो आज आया है, स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया था, तो वो फंक्शन कंट्रोलिंग का होता है। ठीक है, ये कुछ अदर असर्शन रीजन क्वेश्चंस है जो आजकल एग्जाम में आते हैं। हम बोल सकते हैं अगर CBSE 11th 12th के स्टूडेंट्स तो उनके भी आते हैं, BBA MBA में भी अच्छे खासे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, UGC नेट में भी आता है। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल प्रोसेस, यस, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड ओनली इन वन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, नो, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड इन एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसलिए A इज ट्रू, R इज फॉल्स। ठीक है, मैनेजमेंट इज बोथ अ साइंस एंड आर्ट, ओके, इट हैज यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स बट इज अप्लाइड विद पर्सनल स्किल, ओके। तो ये क्या बोल रहा है, बोथ A एंड R ट्रू एंड R एक्सप्लेन से। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल, अ स्टार्टअप फाउंडर पर्सनली हैंडल्स हायरिंग, बजटिंग एंड डेली ऑपरेशंस फॉर अ 10-person टीम। ठीक है, तो दिस फाउंडर इज प्राइमरली परफॉर्मिंग विच मैनेजमेंट फंक्शन? अब वो क्या कर रहे हैं, हायरिंग भी कर रहे हैं, बजटिंग भी कर रहे हैं, डेली ऑपरेशंस भी देख रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तीनों चीज फोकस कर रहे हैं। ठीक है, बजटिंग जो चीज थी वो कंट्रोलिंग में आ जाती है, डेली ऑपरेशंस हो गए डायरेक्टिंग के, हायरिंग हो गया स्टाफिंग का। तो ये केस है, इससे आप इन सब क्वेश्चंस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एज द स्टार्टअप ग्रोज टू 200 एम्प्लॉइज, विच लेवल ऑफ फंक्शन विल लाइकली टू एडेड फर्स्ट? जैसे ही 200 एम्प्लॉइज आ जाते हैं तो कौन सा फंक्शन ऐड हो जाता है? दैट इज मिडल लेवल। ठीक है, टॉप लेवल तो ऑलरेडी था स्टार्टअप में, फिर मिडल लेवल भी बीच में एक आ जाता है, मीडिएटर। दिस सिनेरियो बेस्ट इलस्ट्रेट मैनेजमेंट एज ग्रुप एक्टिविटी रिक्वायरिंग डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब काम को बांटना, वो हम आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ ट्रू फॉल्स के कमांड्स क्वेश्चंस है। ठीक है, कंसेप्ट्स पढ़ लेना ये, एंड 5 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है फॉर सेल्फ स्टडी। यू शुड नो दीज आंसर्स टिल नाउ। व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड एन यूनिवर्सल प्रोसेस। ठीक है, 2 definitions of management, distinguish between efficiency and effectiveness, discuss whether management should be considered a full profession, फुल प्रोफेशन बोल दें इसको या आर्ट बोले, साइंस बोले, कंबाइनेशन बोले। ठीक है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये सब क्वेश्चंस आपको आने चाहिए अभी तक में। ठीक है, दिस इज द व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। की ऑथर्स पढ़े हमने, मैनेजमेंट का तीनों ही नेचर होता है, ठीक है, प्लस होता है ये, और ये हमने पढ़ा POSDC। ओके, सो दिस इज इट फॉर द टुडे।
This is the summary of our lecture. We have gone through the management, that is continuous universal process through people and resources. 6 key scholars की हमने definition पढ़ी है. मैनेजमेंट एक ब्लैंड होता है साइंस प्लस आर्ट प्लस एन एमर्जिंग प्रोफेशन. ठीक है, ऐसे याद रखना लाइंस को, स्टेटमेंट्स को. 3 लेवल्स पे काम करता है, 6 फंक्शंस होते हैं एंड हमने कुछ कंसेप्ट्स देखे थे कैसे ये अलग अलग कंपनीज में अप्लाई होता है, इवन टू योर कॉलेज और स्टार्टअप. सो दिस इज इट फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो. ठीक है, हमारा कल का जो टॉपिक होगा नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में डीप डाइव. It will be different concepts, different things in your next lecture. So all the best. Keep watching complete playlist of management and all the concepts which you want to learn. Thank you so much for watching. If you like the content, you can subscribe to my channel.